بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس عالم چینل۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، آج میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے حکیم لقمان اور ایک جادوئی گدھا کا واقعہ۔ میرے محترم ناظرین، اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی اگلی اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، اس کہانی کا آغاز ایک دور دراز گاؤں سے ہوتا ہے جہاں حکیم لقمان اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے مشہور تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنی زندگی کے مسائل کے لیے اکثر حکیم لقمان کے پاس آیا کرتے تھے۔ حکیم لقمان ہمیشہ اپنے سادہ اور اثر انگیز الفاظ سے لوگوں کی رہنمائی کرتا اور وہ ان کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب رہتا، لیکن ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف حکیم لقمان کی زندگی کو بدل دیا بلکہ پورے گاؤں کے لوگوں کو ایک انمول سبق سکھایا۔ ایک دن حکیم لقمان اپنے گاؤں کے قریب جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک گدھا ملا جو بظاہر ایک عام گدھا دکھائی دیتا تھا۔ گدھا بیمار اور کمزور نظر آ رہا تھا، جیسے کئی دنوں سے بھوکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ حکیم لقمان رک گئے اور گدھے کو غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کے اندر کچھ غیر معمولی ہے۔ حکیم لقمان نے گدھے کو کھانا دیا اور پانی پلایا۔ گدھا جیسے ہی کچھ بہتر محسوس کرنے لگا، وہ اچانک بول پڑا، اے دانا حکیم، میں کوئی عام گدھا نہیں ہوں بلکہ ایک جادوئی قوت کا مالک ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حکیم لقمان حیران رہ گئے، لیکن چونکہ وہ ایک حکیم تھے اور زندگی کے کئی عجیب حقیقتوں سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے گدھے کی بات سنجیدگی سے لی۔ گدھے نے حکیم لقمان کو بتایا کہ وہ ایک وقت میں ایک طاقتور جادوگر تھا، لیکن اپنی خود غرضی اور ظلم کی وجہ سے ایک گدھے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس کی یہ سزا اس وقت تک جاری رہے گی جب تک وہ اپنی غلطیوں کا اضلاع نہیں کر لیتا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرتا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ گدھے نے کہا، میں تمہارے ساتھ رہ کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی سزا سے نجات پا سکوں۔ حکیم لقمان نے اس پیشکش کو قبول کیا، لیکن انہوں نے گدھے کو خبردار کیا کہ وہ جادوئی طاقتوں کا غلط استعمال نہ کرے۔ دونوں نے مل کر گاؤں کی بھلائی کا عزم کیا۔ حکیم لقمان اور گدھے کی گاؤں میں واپسی کے بعد یہ بات پھیل گئی کہ حکیم لقمان کے پاس ایک جادوئی گدھا ہے۔ اس وقت گاؤں میں کئی مسائل بڑھ چکے تھے۔ امیروں کی خود غرضی اور غریبوں کی بدحالی نے گاؤں کو تباہی کے جانب لا کھڑا کیا تھا۔ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور انصاف ناپت ہو چکا تھا۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حکیم لقمان نے گدھے کے ساتھ مل کر لوگوں کی مدد شروع کی۔ وہ غریبوں کو مشورے دیتا اور ان کی مشکلات کا حل نکالتے، لیکن گاؤں کے سردار کو حکیم لقمان اور گدھے کی مقبولیت سے شدید خطرہ محسوس ہونے لگا۔ گاؤں کے سردار جو اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے گاؤں پر قابض تھا، اس کو لگا کہ حکیم لقمان اور گدھا اس کے ارادے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ جادوئی گدھے کے ذریعے اپنی مشکلات حل کریں اور حکیم لقمان کی ارد گرد اکٹھے ہو۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ سردار نے گدھے کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ خود اس کے جادوئی طاقتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکے۔ ایک رات جب حکیم لقمان اور گدھا سو رہے تھے، سردار کے آدمیوں نے گدھے کو چوری کر لیا اور اسے اپنے محل میں قید کر دیا۔ گدھے کو محل کے اندر کمرے میں قید کر دیا گیا جہاں سردار اسے جادوئی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن گدھے نے انکار کر دیا اور کہا، میری جادوئی طاقت صرف انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، نہ کہ کسی خود غرض مقصد کے لیے۔ سردار نے اسے اذیت دی اور طاقت کا لالچ دیا، مگر گدھا اپنے اصولوں پر قائم رہا۔ اس دوران حکیم لقمان کو گدھے کی گمشدگی کا علم ہوا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ سردار کا کام ہے، لیکن انہوں نے کوئی جلد بازی نہیں کی۔
बल्कि एक मंसूबा बनाया। हकीम लुकमान ने गांव के लोगों को जमा किया और उन्हें बताया कि सरदार ने इनके जादुई गधे को कैद कर लिया है, लेकिन उन्होंने लोगों को इस बात की तरफ भी मुतवज्जह किया कि गधे की जादुई ताकतों से ज़्यादा अहम इनकी नीयत और अमल है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और ख़ुद गर्जी छोड़ दें तो हमें किसी जादुई ताकत की ज़रूरत नहीं होगी। हकीम लुकमान ने कहा। गांव के लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वह समझ गए कि असल मसला इनकी खुदगर्जी और आपस की नाइत्तफाकी है, न कि कोई जादुई ताकत। हकीम लुकमान और गांव वालों ने सरदार के खिलाफ खड़े होने का फ़ैसला किया। गांव के लोग महल के सामने जमा हुए और सरदार से गधे की रिहाई का मुतालबा किया। सरदार ने पहले लोगों को धमकियां दी, लेकिन जब उसने देखा कि लोग मुत्तहिद हैं और हकीम लुकमान के हक़ में है तो वह घबरा गया। बिल आखिर सरदार को गधा छोड़ना पड़ा, लेकिन जैसे ही गधा आज़ाद हुआ उसने सरदार को ख़बरदार किया कि अगर वह अपनी हरकतें नहीं बदलता तो इसका अंजाम बुरा होगा। गधे की सज़ा ख़त्म हो चुकी थी और उसने हकीम लुकमान से मुलाकात की। इसने शुक्रिया अदा किया कि हकीम लुकमान ने इसे इंसानियत की भलाई के लिए काम करने का मौका दिया। जैसे ही इसने अपनी गलतियों का कुफ़ारा अदा किया, वह दोबारा इंसान बन गया। हकीम लुकमान ने गांव वालों को याद दिलाया कि जादुई ताकतों का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम खुद अपनी ज़िंदगियों में नेक नियति और सच्चाई का दामन थामे, जब गधा आज़ाद होकर एक आम इंसान में तब्दील होता है तो वह अपने माजी के बारे में मज़ीद इंकशाफ करता है। वह हकीम लुकमान को बताता है कि इसके साथ साथ और भी कई जादूगर हैं जिन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और अब वह सब मुख्तलिफ जानवरों में तब्दील हो चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी गलतियों का एतराज़ करने के बजाय मज़ीद तबाही फैलाना चाहते हैं। हकीम लुकमान अब न सिर्फ गांव के मसाइल हल करने का सोचता है, बल्कि वह यह भी समझ जाता है कि इसे इन जादूगरों को भी रोकना होगा जो अपनी गलतियों से सीखने के बजाय मज़ीद जुल्म का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। हकीम लुकमान और तब्दील शुदा गधा जो अब एक इंसान है, एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं ताकि उन जादूगरों को तलाश किया जा सके जो जानवरों में तब्दील हो गए हैं। उनकी तलाश में मुख्तलिफ मुश्किलात मराहिल आते हैं। सबसे पहला जानवर एक सुनहरी शेर है जो एक खौफनाक जंगल में रहता है। जब हकीम लुकमान और उनका साथी शेर तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह शेर किसी ज़माने में एक जालिम बादशाह था जो अपनी रियाया पर बेजा जुल्म करता था। इस शेर के साथ एक ज़बरदस्त जंग होती है जिसमें हकीम लुकमान को अपनी हिकमत और दानाई से काम लेना होता है ताकि वह शेर को काबू में कर सके और इसकी गलतियों का एहसास दिलाए। जब हकीम लुकमान उसका साथी शेर को बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो गांव के सरदार को पता चलता है कि हकीम लुकमान की मकबूलियत और भी बढ़ गई है। सरदार को यह खौफ लाहक होता है कि वह अपनी ताकत और दौलत को खो देगा। सरदार एक मंसूबा बनाता है। वह हकीम लुकमान के साथी को धोखा देने की कोशिश करता है और इसे लालच देता है कि अगर वह हकीम लुकमान का साथ छोड़ दे तो इसे दौलत और इज़्ज़त मिलेगी। सरदार की इस चालाकी में एक शहर शामिल होता है। वह एक कदीम किताब के ज़रिए जादुई ताकतों का इस्तेमाल करता है ताकि लोगों को अपनी तरफ मायल कर सके। सरदार की चालाकी के बावजूद हकीम लुकमान गांव वालों को मुत्तहिद करने में कामयाब हो जाता है। गांव के लोग सरदार के जुल्म और चालाकियों के खिलाफ बगावत करते हैं। एक रात जब सरदार अपने महल में जादुई किताब के ज़रिए मज़ीद ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है, गांव के लोग महल पर हमला कर देते हैं। सरदार की सारी जादुई चालाकियां नाकाम हो जाती है क्योंकि गांव वाले अब मुत्तहिद हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस दौरान महल में अजीब और गरीब वाक़यात पेश आते हैं। सरदार का महल आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है और एक पुरअसरार शहर टूटता है जिसकी वजह से सरदार खुद एक गधे में तब्दील हो जाता है। अब जबकि सरदार खुद एक गधा बन चुका होता है, इसे अपने आमाल का एहसास होता है। हकीम लुकमान इसे मौका देता है कि वह अपने किए पर पछताए और लोगों की खिदमत करे ताकि वह अपनी सज़ा से निजात हासिल कर सके। सरदार को मजबूरन लोगों के लिए काम करना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी अना और गरूर ख़त्म हो जाता है।
दूसरी तरफ हकीम लुकमान और इसका साथी एक आखिरी जादुई जानवर के बारे में सुनते हैं जो एक खौफनाक पहाड़ की चोटी पर रहता है। यह जानवर दरअसल एक साबिक जादूगर है जो हमेशा झूठ बोलता था और लोगों को धोखा देता था। इस जादुई जानवर को काबू करने के लिए हकीम लुकमान और इसके साथी को अपनी हिकमत का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि यह जानवर अपनी चालाकी से लोगों को गुमराह करता है। यह मंजर झूठ और धोखाधड़ी की निशान करता है। आज के दौर में भी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिकमत और सच्चाई हमेशा फतह हासिल करती है। हकीम लुकमान और उसके साथी की मेहनत और कुर्बानियों के बाद गांव में दोबारा अमन और खुशहाली आ जाता है। लोग अब अपनी गलतियों से सीख चुके हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सरदार, जो अब गधा बन चुका है, अपनी सज़ा काटते हुए एक दिन लोगों की खिदमत करके दोबारा इंसान बन जाता है। इसके बाद वह हकीम लुकमान के साथ मिलकर गांव की तरक्की में हिस्सा लेता है। इस कहानी के आखिरी हिस्से में हकीम लुकमान को एहसास होता है कि इसने गांव वालों को वह सब कुछ सिखा दिया है जो वह सीख सकते थे। वह गांव वालों को अलविदा कहता है और एक नए सफ़र पर रवाना हो जाता है ताकि वह और लोगों की मदद कर सके। गांव के लोग हकीम लुकमान का शुक्रिया अदा करते हैं और इसे हमेशा अपनी यादों में ज़िंदा रखते हैं। हिकमत का हकीकी मकसद इंसानियत की खिदमत है। याद रखें, असल जादू ना किताबों में है, ना जादूगरों में, बल्कि इंसान की नीयत और सच्चाई और अमल में पोशीदा है। इस स्टोरी का इख्तिताम इस अहम सबक पर होता है कि जादू और ताकत का गलत इस्तेमाल इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है, जबकि सच्चाई, इंसाफ और खिदमत इंसान को न सिर्फ कामयाबी की तरफ ले जाते हैं बल्कि माली तरक्की का सबब भी बनते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी ताकत इंसानियत की खिदमत और दूसरों की मदद में है। ताकत और जादू की कोई अहमियत नहीं है जब तक कि इंसानियत नेकी और इंसाफ को तवज्जो न दे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।